Yes, welcome back. Now I am glad to see there are some students they post their doubts. Vishal, Ankita and Arpita. These three students asked this fourth problem of exercise 5.2 on page 166. Please see it. This is the problem of chain rule. So first you think, what is this? If you have direct sec theta, differentiation of sec theta, you remember it is sec theta into tan theta. What problem is this? In place of theta you have tan of root x. So you suppose y equal to sec t, where what is t? T equal to tan root x. You know, if you have differentiation of tan theta, then it is sec square theta. So here you have the problem. Problem is this, you have root x. So you suppose it is u, where what is u? U equal to root x. This is the chain. First you suppose tan root x as t. Then you suppose root x as u. Clear? और भी हो सकते हैं. आपको यही सपोज करते आना चाहिए. अब आप y देखें काय का फंक्शन है t का. So you find dy by dt. dy by dt is sec t into tan t with respect to t here. Now, what is the differentiation of t? T is the function of u. So you differentiate t with respect to u. That is, it is sec square u. At last, u is the function of x. That is du by dx. So what is the differentiation of root x? It is obviously 1 upon 2 root x. अब इतना तो आपसे आने लगा है. X to the power half, half into x to the power minus half, that is 1 upon 2 root x. Now you want to find dy by dx. You know, by chain rule, y is the function of t multiplied by t is the function of u multiplied by u is the function of x. Substitute their values. That is sec t into tan t. T is the function of u, that is multiplied by sec square u. And u is the function of x, that is 1 upon 2 root x. Now you substitute the value of t and u. Sec t, that is sec tan u. U means root x. Tan t. T means tan u. Or u means root x. Sec square u, that is into sec square root x whole upon 2 root x. Please check result. Result check कर लें. This is the fourth question of the exercise 5.2. Now tell me the next doubt. First you write down it. बाकी लोगों को भी इसको क्लास पर कॉपी में करना है. Question number 4, page 166. Please solve the problem. On your notebook, write down it. Yes. जल्दी करिए. अटेंडेंस दीजिए. आपकी ये अटेंडेंस में पर डे रिकॉर्ड कर रहा हूं. देखो बच्चों, कोविड-19 के इस पैंडेमिक एज में, पैंडेमिक टाइम में हो सकता है ये अटेंडेंस आपको बहुत काउंट करे, है ना. ये आपके इंटरनल असेसमेंट में बहुत काम आने वाली है. इसलिए प्लीज बी अलर्ट, रेगुलर रहिए और क्विट मत करिए. आपको कंटिन्यू रहना है. मैं आपके व्यूज कंटिन्यू काउंट करते हैं, कितने बच्चे काउंट देख रहे हैं वीडियो. हो गया. अब फोर्थ के बाद बोलो जी. क्वेश्चन नंबर 6. 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 वेयर आस्क्ड बाय अंकिता, हर्षिता, अर्पिता. अंकिता, हर्षिता एंड अर्पिता ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है. दिस इज द डाउट. वेरी गुड चिल्ड्रन. यस, रीड इट. cos x cube into
cos x cube into Sin square x to the power 5. sin square x to the power 5. You want to find the derivative of this function. Now you differentiate it with respect to x directly by using product rule. You remember differentiation of f1 into f2, it is first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. So it is differentiation of y with respect to x, that is cos x cube into differentiation of sin square x to the power 5. Clear? Plus sin square x to the power 5 multiplied by differentiation of cos x cube. Got it? Product formula apply कर दिया. Now dear children, you want to find this derivative and this derivative separately. So say it is first. इसको आप first ले लें. Now let y1 equal to sin square x to the power 5. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको लिखेंगे y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर, ये वाले फंक्शन को. अब आप क्या बोलो, y1 इक्वल टू, इसको t एज्यूम करो, t स्क्वायर, वेयर व्हाट इज t, t इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 5. क्लियर जी? अब यदि आप देखें तो t इक्वल टू आपने जो एज्यूम किया, यदि t इक्वल टू साइन थीटा होता तो कॉस थीटा हो जाता. ये प्रॉब्लम है, मतलब इसको आपको क्या लेना होगा, u. व्हाट इज u? u इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5. मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से निकालना चाहा. कौन यहां करे, फर्स्ट इक्वेशन लिख के रख लिया, इसको मैंने y1 एज्यूम किया. y1 इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं. We know for t square का differentiation 2t होता है. So we suppose this quantity as t equal to sin x to the power 5. We know if sin x is there, then its differentiation is cos x. So our problem is x to the power 5. So we suppose this x to the power 5 as u equal to x to the power 5. Now you differentiate y1 with respect to t. y1 is the function of t, so it becomes 2t. t is the function of u, that is dt by du equal to cos u, and u is the function of x, so it becomes 5x to the power 4. Clear ji? Now what you want? You want to find the derivative of this function with respect to x, that is y1 का हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में. Then it becomes 2t into cos u into 5x. Actually आप फार्मूला पहले लिख लें. y1 is the function of t multiplied by t is the function of u is the function of x, by chain rule. Now substitute their values. क्या है जी, 2t cos u into 5x to the power 4. Finally 5 2 जा 10 x to the power 4 पहले लिख दिया. Cos u, what is u? इंटू कॉस यू, पहले t की वैल्यू रख दीजिए. t इज, व्हाट इज t, साइन यू इंटू कॉस यू पहले से है. 5 2 जा 10, t की जगह मैंने साइन यू लग दिया. अभी साइन यू का वैल्यू क्या है जी, u फॉर sin x to the power 5 into cos x to the power 5. ये किसका डेरिवेटिव आया, ये इसका है सर, d by 1 by dx, that is differentiation of sin square x to the power 5 का है सर. क्लियर सर? इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Similarly you have to opt the differentiation of cos x cube. उसके लिए जगह चाहिए. फर्स्ट यू राइट डाउन इट,
Then I will solve for cos x cube. जल्दी करें. Please find out the differentiation of cos x cube separately. उसके लिए जगह चाहिए. Yes, do it. जल्दी करिए इसको. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. Those children they have the practice, they are able to write its derivative directly. How they will write? They suppose like this. सर पहले मैंने sin x to the power 5 को t लिया, t स्क्वायर का 2t, that is 2 into sin x to the power 5. x to the power 5 को u लिया, sin u का cos u, u किसको लिया, x to the power 5, 5 का 5 into x to the power 4, और वो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं. इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि ये डायरेक्ट आपसे आने लग जाए. फर्स्ट यू एक्सप्लोर लाइक दिस, नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन. एक बार, दो बार, तीन बार आप लिखोगे, लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. देन यू विल बी अ मास्टर, otherwise blaster as you want. Now similarly you have to find, let y2, क्या है सर y2, किसका निकालना है. अब हमें ये निकालना है cos x cube. y2 is the function cos x cube. Let y2 equal to cos x cube. अब आप देखिए, यदि x क्यू ना होके यहाँ थीटा होता तो cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाता. मतलब मैं x क्यू को लूं t, मीन्स cos t, where what is t? t equal to x cube. Now differentiate y2 with respect to t. इस स्टेप को साफ कर लो, डायरेक्ट वैल्यू बता देना आप मुझे. dy टू y t, cos t का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन टी, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x? इट शुड बी 3x स्क्वायर. देयरफॉर dy2 by dx हमको चाहिए, सो dy2 by dt इंटू dt by dx. Then what is the dy2 by dt? That is minus sin t into 3x square. That is minus 3x square sin t. What is t? X cube. So it is the differentiation of cos x cube. If you write directly, cos theta का sin theta होता है तो minus sin theta, cos theta का minus sin x cube, and x cube को t लिया तो उसका differentiation product में आएगा. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर. मैंने ये assumption करके दिखाया, like the beginners. If you want to write direct, सर आप बोलोगे सर देखो differentiation of cos x cube था, x cube को लिया t, so minus sin x cube, that is cos t का minus sin t. अब जिसको t लिया उसका differentiation, that is 3x square. डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. अभी ये दोनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So what was the first equation? From first, tell me. dy by dx equal to, yes, cos x cube cos x cube into differentiation of sin square x to the power 5. differentiation of sin square x to the power 5 plus sin square x to the power 5 into differentiation of cos x cube. Then it is cos x cube. इसका डेरिवेटिव आपने निकाला है 10x to the power 4. Is it? 10x to the power 4 sin x to the power 5 into cos x to the power 5. यही आया क्या? चेक करिए. cos x cube का आपने निकाला है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस पहले लिख दिया, इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 पहले से है, इंटू साइन x क्यूब. प्लीज चेक करें रिजल्ट. प्लीज रिजल्ट चेक कर लें. Now, any other doubt?
एनी अदर डाउट? जल्दी करें सर इसको, थोड़ा जल्दी लिखिए। ये 10x टू दी पावर 4 आप पहले लिख देंगे और अच्छा लगेगा आपको लिखने में। 10x टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स क्यू। एंगल पर पावर है ये, ऐसा भी लिख सकते हैं। डू इट, जल्दी करें जी, कॉपी पर लिखना है। डोंट सी लाइक दी पिक्चर, वीडियो जैसा नहीं देखना है। और घर में यहां वहां घूम रहे हो, कुछ तो किचन में घूमते रहते हैं अपनी, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हो गया? रब कर दो। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो आपके सबसे बड़ा बेनिफिट YouTube क्लास का ये है कि ये वीडियो आपके पास है, इसकी लिंक आपके पास है, आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। कोई स्टेप नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को पूछ सकते हैं, आप लिख के पूछ सकते हैं, कॉपी पर पूछ सकते हैं। प्लीज बेटे पढ़ने की टेक्निक बदलिए। लाइक दी रियल क्लास, आपको वर्चुअल क्लास को मीनिंगफुल बनाना है और मेरे जो एफर्ट्स हैं उनको फ्रूटफुल बनाना है। ये आपकी हेल्प के बिन यदि आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज आप कोऑपरेट करें, हेल्प करें। जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारा ये प्रयास, हमारा आपका ये प्रयास सफल नहीं होगा। सो प्लीज डू दी प्रॉब्लम। Yes. Question number 7 by Vishal, Rupesh, Harshita, Asmita. Question number 7 asked by Vishal, Rupesh, Arpita and Harshita, Asmita. Harshita and Asmita Mishra. So please see the problem number 7. Please read it. 2 under root cot x square 2 under root cot x square. My dear children, see, it is written as y equal to 2. कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं cot x square. इसको आप लिख सकते हैं cot x square to the power 1 by 2. Is it? So what is the problem? This is the problem. If you suppose this is t, then it becomes 2 root t. That is y equal to 2t to the power half. Where what is t? T is cot x square. अब बेटे cot थीटा होता तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट होता, मतलब अब ये प्रॉब्लम है। सो यू सपोज x स्क्वायर एज u इक्वल टू x स्क्वायर। मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, अब 2 स्टेप यहां लिखी। फर्स्ट यू सपोज दिस इज t, देन यू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल, देन यू हैव नेक्स्ट ऑब्स्टेकल इज x स्क्वायर, सो x स्क्वायर को u ले लिया। अब y का एक फंक्शन है t का, तो y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dt 2 t टू दी पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2 t टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू t टू दी पावर 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 बाई 2। t का विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर u, एंड u का विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा जी, 2x। अंडरस्टैंड? नाउ 2 कैंसिल, देन dy by dx equal to dy by dt multiplied by dt by du multiplied by du by dx. dy by dt, t to the power minus 1 by 2, that is 1 upon root t. dt by du, that is minus cosec square u. du by dx, 2x. Then you substitute the values, minus 2x cosec square u. What was u? U is x square upon, what is t? T is under root cot u and u is x square. Check the result. Check the result. The result is
minus 2 under root 2x upon sin x square under root sin 2x square. Yes, the problem is this, the children asking this question, why, since the form of the result is different in the book. You don't worry children, you write this, I give the form of the book. First you write down this, इसको लिखिए, मैं बुक का फॉर्म कैसे जनरेट हुआ वो बताता हूँ, उसने ऐसा कैसे लिख दिया वो बताता हूँ. प्लीज राइट डाउन इन दिस फॉर्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट वो फॉर्म कैसे जनरेट हुआ वो बताता हूँ. Please write down the solution of seventh problem. सब लिखेंगे, जिनने कर लिया वो भी लिखेंगे. Please write down on the book. पटेल कैसे बैठी हो, लिखो ना. अदिति तिवारी लिखिए. हो गया. इतना लिख लिया. इसमें आई थिंक आपको समझ आ गया. कमेंट्स बॉक्स में चेक करिए, लिखिए यू अंडरस्टैंड और नॉट, विच स्टेप यू हैव डाउट. ये चेन रूल लगाना है. केवल एक ही बच्चा, लकी श्रीवास्तव, दैट इज कौन श्रीवास्तव, ये यश श्रीवास्तव का कमेंट्स आता है. बाकी लोगों को तो कमेंट्स बॉक्स में लिखते ही नहीं आता. चैट बॉक्स में पता नहीं, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, नो सर. अरे बाबा, चैट बॉक्स तो वीडियो जब चलता है तब तक विजिबल होता. कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए ना, आपको आया या डाउट है, कौन से स्टेप में डाउट है. कमेंट्स बॉक्स में लिखते नहीं आता है. अभी तक कितने दिन हो गए यूट्यूब के वीडियो देखते हुए, कब सीखोगे तुम? सीएस वाले बच्चे हो, उसमें लिखिए जाके और उसी में अटेंडेंस दीजिए. नहीं आता है क्या? अच्छा सीखो ना. तो केवल प्रीतम, अदिति के कमेंट्स आते हैं, बाकी के पता नहीं क्यों कमेंट्स बॉक्स खोलते ही नहीं आता. उनको पता ही नहीं कहां लिखना होता है ना. सीखो भैया. ए बाबू, कब सीखेगा? अभी देखो सर, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आंसर चेक करते हैं तो वो कहते हैं मासा आंसर तो नहीं आ रहा. बहुत ग्लैड हो गया सर, नहीं आ रहा. आ रहा है, यही आंसर है. देखो -2x अपॉन ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ. अपॉन वाली क्वांटिटी जो कॉट एक्स स्क्वायर था, इसको आप लिखिएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर. लिख सकते हैं बाबू. कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का रूट सेपरेट कर दिया. आप पूछोगे ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कहूंगा हमारे भैया लोगों को ये बताने के लिए कि ये आंसर जो है वो वही है जो बुक में दिया हुआ है. दे आर नॉट डिफरेंट. आप यहां तक करिएगा, यू गेट फुल मार्क्स, 100% मार्क्स. केवल ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे आप ये ना कहें आप बहुत अच्छे बच्चे, आप ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चे ऐसा कहते हैं देखो मास्टर का आंसर नहीं आ रहा, ग्लेड हो गए. नहीं भैया, ऐसा नहीं कहते. -2x अपॉन इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर. तो था ही, था क्या? अरे बोलो हाँ या ना. भाई देखो, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर में प्रोडक्ट होगा तो साइन एक्स स्क्वायर बनेगा, और साइन एक्स स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स से प्रोडक्ट होगा तो टर्म आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हो गया. क्लियर? अब मैंने -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर
रूट इस पर भी था, रूट इस पर भी था, रूट लिख लिया जी, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। रूट 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू कर लिया जी, तो रूट 2 अंदर आ जाएगा। अब 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, so it is written as minus 2 root 2 x upon sin x square under root sin 2x square। चेक करें रिजल्ट, ग्लैड हो जाइए, यही है, फॉर्म इज चेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग of differentiation, that is calculus. The answer of one question may be written in so different form. That's why the children of class 12th, when they are inside the examination hall of for G mains, they always commit the mistake. They think only first answer is correct, this is wrong, but both are correct. So trigonometry का फॉर्म कुछ भी हो सकता है बेटे, हाफ एंगल हो सकता है, ये ट्वाइस एंगल में आ गया, वो सिंगल एंगल में था, एंगल कन्वर्ट कर दिया, बट दे आर सेम। सो यू रिमेंबर, यू मेक दी सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन बनाओगे तो वही आएगा जो आपका आ रहा था। तो आप परेशान ना हो, जब प्रूव करने आएगा तब ऐसा करना होगा। इट इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन ओनली। दिस इज द प्रॉब्लम। एनी अदर प्रॉब्लम? नो। सो आई थिंक रिमेनिंग क्वेश्चंस आर completed by all the children of my class, very intelligent children, सबसे आता है, सब कर लेते हैं। पीछे से अभी 2 बच्चे और आने वाले हैं, लग रहा है उनको प्रोजेक्ट आज मैंने दे दिया है, लगता है वो भी बहुत जल्दी आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे। सर, नाउ वी डिस्कस द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या? Yes, sir. नाउ वी हैव द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। Differentiation of implicit function। माय डियर चिल्ड्रन, इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के पहले आपको यह रिकॉल करना होगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन होते क्या हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर द इम्प्लीसिट फंक्शन, अदिति? डू यू नो इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं? नहीं पता है। इम्प्लीसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें y का वैल्यू क्लियर नहीं होता। अभी तक जो आप कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब था? एक्सप्लिसिट फंक्शन था जिसमें एक साइड y होगा, दूसरे साइड, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और इम्प्लीसिट फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि यहां भी y आएगा और वहां भी y आएगा, x y की टर्म दोनों साइड हो सकती है। सो y इज नॉट इन टर्म्स ऑफ x ओनली। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लीसिट। व्हाट इज एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट इज दी y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x या फिर x इन टर्म्स ऑफ y। समझ आया सर? ये फंक्शन जो कहलाता। अब कैसे इसके क्वेश्चन करेंगे वो हम क्वेश्चन से ही डिस्कस करना चाहेंगे। सो प्लीज स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इन योर नोटबुक। व्हाट इज explicit? Explicit function is the function in which y in terms of x और x in terms of y given होंगे। ये फंक्शन जो इस फॉर्म में होते हैं वो एक्सप्लिसिट हैं। What are implicit? Both side you have x and y, दोनों साइड x y की टर्म हो सकती है। y इक्वल टू मतलब सेपरेशन नहीं होगा, एक साइड y एक साइड x नहीं होगा, दोनों साइड x y की टर्म आ सकती है। समझ आया सर? What is the explicit and what is the implicit? I think it is quite clear. Explicit, implicit दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चैट बॉक्स देखने आ रहा हूं, कोई नहीं देख रहा। रे बच्चे, कितने खतरनाक बच्चे, मेरी बात नहीं सुनते ये बच्चे मन के सच्चे, मैंने ऐसा सुना। लेकिन तुम लोग तो झूठे नजर आ रहे, तुम तो नहीं लिख रहे हो भैया। अच्छा, वो लिखते ही नहीं आता ना, कमेंट्स बॉक्स में जाते ही नहीं आता, कुछ को तो बनता ही नहीं सर, क्या बताएं सर। ला 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 ला। चैट तो जब तुम देख लेते हो वीडियो, उसके बाद वो खत्म हो जाती है।
हमको कमेंट्स बाद में देखने को मिलते हैं, वो प्रिंसिपल के पास में दिखाता हूँ, देखो हमारे बच्चे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, उनने डाउट लिखे या समझ आ रहा है, वो प्रूफ होता है और वो आप लिखना नहीं मांगते, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा नहीं करो ना प्लीज। हाँ चलिए आइए, एक्सरसाइज 5.3, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Find dy by dx in the following: 2x plus 3y equal to sin x. 2x plus 3y equal to sin x। See the dear children, यहाँ y equal to in terms of x नहीं दिया है, इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2x plus 3y equal to डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट कर देना है, जैसा भी फंक्शन लिखा है उसमें कोई कष्ट नहीं उठाना है, डायरेक्ट लिख देना एक्सेप्ट द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स। इनवर्स में पहले सिंप्लीफिकेशन होगा। अब क्या करिए सर, इसका डिफरेंशिएशन करिए। 2x का डिफरेंशिएशन बोलो प्रीतम सिंह। यस, 2x का 2, यस वेरी गुड। 3y का 3 कांस्टेंट dy by dx, यस। अपूर्वा मिश्रा, sin x का डिफरेंशिएशन कमेंट्स बॉक्स में दिखाई देना चाहिए मुझे। sin x का डिफरेंशिएशन मैं देखता हूं बॉक्स, फिर आके लिखूंगा। यस, cos x, गुड। अब 2 को शिफ्ट करो, क्या बना? 3 dy by dx equal to cos x minus 2, then dy by dx equal to cos x minus 2 upon 3। आपको लास्ट में dy by dx की वैल्यू ऑप्ट कर देनी है, हो गया सर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, दिस इज नॉट एक्सप्लीसिट। y और x अलग अलग नहीं है, y x के साथ उलझा हुआ दिया हुआ है जी। अभी सेकंड करिए, चलिए ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूं, चलिए चलिए करिए। खुशी शुक्ला का इस एक्सरसाइज का कोई डाउट नहीं आया, इसका मतलब है खुशी ने एक्सरसाइज कर ली है। कंटिन्यूटी बस में डाउट आया, दैट मींस दैट डिफरेंशिएशन खुशी का ओवर हो गया। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए खुशी जी, जिससे दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले। केवल खुशी ही क्यों कर रही है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज राइट डाउन। आपने डिफरेंशिएशन चेन रूल ठीक से कर लिया है। मैं आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चन देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। अमन सिन्हा, तुम्हारा कुछ नहीं पता रहता है, तुम कब आते हो कब जाते हो, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, तुम या तो सब आता है या कुछ भी नहीं। हो गया, सेकंड हो गया तो थर्ड ट्राई करिए। सी दिस सेकेंड, यदि आपने किया है तो मैं जो कर रहा हूं उससे आप चेक करेंगे, क्योंकि मैं तो आपके पास हूं नहीं अभी चेक करने के लिए। आप खुद मेरी जगह मेरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप अपनी कॉपी पर यदि मिस्टेक है तो जैसे मैं कट करता हूं वैसे आप कट करिए और चेक करके साइन करिए, और फिर उसका फोटो लेके मेरे को भेजिए कि आपने चेक किया था सर, करेक्ट था या मिस्टेक थी। प्लीज सेंड दी फोटो, आपने चेक किया तो। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ। 2x plus 3y equal to sin y. 2x plus 3y equal to sin y. See, it is the implicit function. Differentiate both sides with respect to x. इसको direct with respect to x आप differentiate कर दीजिए। My dear friend, 2x का 2 हुआ, 3 y का dy by dx। अब यहां देखिए साहब, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे हो सकता है? चेन रूल लगाना होगा। मतलब आप चेन रूल से बोलोगे सर y का साइन y का विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, और y का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। अरे चेन रूल लगाए ना बाबा, ये नहीं लगाते हैं आप। दिस इज दी ड्रॉबैक, यही आपने मिस्टेक की होगी। आप जरूर कट लगाएं, ऐसा सर्किल लगाएं और इसको लिखें जिससे मिस्टेक ना हो। इसी की फोटो आप भेजिएगा कि यस सर सही कह रहे हैं आपकी, ये मिस्टेक यहां हुई है। बहुत से बच्चे यहां मिस्टेक करते। सर इट बिकम्स 2 plus
3 dy by dx इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन cos y dy by dx। अभी dy by dx की टर्म एक साइड ले लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, मीन्स इसको ट्रांसपोजिशन कर दीजिए। 2 इक्वल टू cos y dy by dx minus 3 dy by dx। Taking dy by dx common, then it becomes cos y minus 3 into dy by dx. Then what is the value of dy by dx? Value of differentiation of y with respect to x is 2 upon cos y minus 3. This is the value of dy by dx. Check the result. जिनने करेक्ट किया वो मेरी साइड टाइप मेरी तरफ से अपने लिए क्लैप बजाएं और साइन कर लें, वेरी गुड लिख लें। ऐसे ही आपको सेकेंड हो गया, थर्ड करना है जी। फोर्थ आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर आप ट्राई करेंगे, फिर 9th ऑनवर्ड आपको बताऊंगा सर। हो गया ये। Question number 4. Can you read it? xy plus y square equal to 10x plus y. 10x plus y, they are independent. x plus y एंगल नहीं है, यदि ब्रैकेट लगा दीजिएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। दे आर सेपरेट। इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए जैसा लिखा है। x इंटू वाई का जब डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y। See, x is first, y is second. Use the product law. x into differentiation of y plus y into differentiation of x plus differentiation of y square with respect to x नहीं हो सकता dear children, चेन रूल लगाइएगा, into dy by dx। differentiation of 10x is sec square x plus dy by dx। then what is this? x dy by dx plus y, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx इक्वल टू sec square x plus dy by dx। Using transposition, you have to write all the terms having dy by dx at a place. Means x dy by dx plus 2y dy by dx minus dy by dx equal to sec square x minus y। y को शिफ्ट कर दी। Now taking dy by dx common, x plus 2y minus 1 dy by dx equal to sec square x minus y। Then what is the value of dy by dx? dy by dx equal to, इसको अपॉन में जाने दीजिए। Therefore, dy by dx equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1। This is the result. Check result. This is the result. Check result.
Now I would like to discuss some more problem, but time is very less, so इनवर्स वाले क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाहूंगा. एक प्रॉब्लम प्लीज बता दें. ये आपका कौन सा हो गया जी? फोर्थ आई थी. इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से किया है उनके लिए बहुत आसान है. अदरवाइज जय जय हिंद है. इन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करिएगा. जो क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड आपको दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करने होंगे. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 9. y equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. y equal to Sin inverse 2x upon 1 plus x square. My dear children, you remember this is 2 tan inverse x. यदि आपने इनवर्स ठीक से पढ़ा है, मेरा वीडियो देखा है, आप इसी चैनल पर विजिट कर ले एक बार. इनवर्स की एक्सरसाइज आपको सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएगा. बट आई वांट टू टेल यू हियर, ये सर आप क्या करिएगा, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है. देन इट बिकम, डिफरेंशिएशन पहले नहीं करना है. मेक द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसका लोएस्ट फंक्शन जनरेट करोगे. ये हुआ, ये होता है बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा दैट इज 2 थीटा मींस y इक्वल टू 2 थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज टेन इनवर्स x. ये जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया. लोएस्ट फॉर्म जनरेट कर लिया. यदि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन किया, इसको t लिया, आंसर तो आएगा, केवल यही करके आएगा बाबूजी. और हो सकता वो भी ना आए, इतना कैलकुलेशन हो जाएगा. और जब बाहर निकलेगा तो मंगल नगर के गेट पर खड़ा नजर आएगा. बोले क्या हुआ? बोले इसने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया. सर के बाल ऐसे ऐसे निकालेगा. सो प्लीज रिमेंबर, पहले सिंप्लीफिकेशन करना. अब सर इसको डिफरेंशिएट करो. dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है टेन इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये डिफरेंशिएशन हो गया. अब ये टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों आया, ये मुझे आपको बताना है सर. ये कैसे आ गया सर? इनके प्रूफ भी आपको करने हैं. थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा. ये आंसर आ गया. माय डियर फ्रेंड, जैसे आपको एग्जाम में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आया निकालने, ये सुन लेना. तो आप क्या करोगे सर? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लोगे. चेन रूल से ये बनाना है. साइन y इक्वल टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड. साइन y का क्या होगा? कॉस y इंटू चेन रूल से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1. dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस y. 1 अपॉन कॉस y may be written as 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y. और बेटे साइन y को क्या लिया? x. मतलब क्या कंक्लूजन आया? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज क्या बना? देयरफॉर इस लास्ट स्टेप के बाद यहां लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर जी? सिमिलरली ये क्वेश्चन आप कर लें, फिर मैं बताऊं क्या और लिखना है आपको. सिमिलरली यू हैव टू प्रूफ, ऐसे ही आपको जैसे ये प्रूव किया है, आप सबको ये प्रूव करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जब मैंने यहां यूज किया तब मुझे याद आया कि ये प्रूफ आपको करने होंगे. फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec inverse x is 1 upon x under root x square minus 1. Differentiation of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square. And at last not least, differentiation of cosec inverse x is minus 1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. जैसे साइन इनवर्स x का प्रूफ करके दिखाया, ये प्रूफ आपको करने हैं. नहीं आते तो बताने हैं. एज वेल एज दिस एक्सरसाइज. कौन सा एक्सरसाइज है ये? 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर. आई होप
you are enjoying the differentiation of implicit function as well as differentiation of inverse function. प्लीज इंटरेस्ट लेके करिए, डाउट आए तो आप पोस्ट करिए. आज मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने डाउट पोस्ट किए हैं. थैंक यू. जय हिंद.